We all are thankful for this organizing committee who have organized this session, which is introduction from is a bridging introduction between the emerging practitioners, that is anorectal practitioners, and senior anorectal surgeons. Nowadays, anorectal cases are increasing due to lifestyle changes, and it is somehow good for our Ayurvedic faculty that people are approaching us. So we should have a good answer for that. Only surgery is not the part. Surgery is a technique, but basic for surgery, that is anatomy hai, या investigations है, that should be proper. So this session is for all the things to cover up, and for a good practice we need senior consultants, so we need such type of continuous CME for further sessions also. So starting with the session, first question related to anatomy. I want to ask Dr. Solanki sir, because he is he's my sir, he's very first my sir. So sir, I just want to ask, is there any role or what is the anatomical consideration in anorectal surgeries for diagnosis and during surgeries? Anatomical considerations are true not only for anorectal surgery, but when you are studying the surgery or you become a surgeon, anatomy is of prime importance. Without knowledge of anatomy, you cannot perform surgery, period. This sentence is absolutely a law, and it is very much true about the anorectal surgery. As you know, the anal and anorectal region, it is a anatomically very complex structure. Not only it has got a strong musculature in the gluteal area, etc., but the levator ani muscle, its component which is forming the part of external sphincter, the internal sphincter, the difference between internal and external sphincter is striated muscle, internal sphincter is a smooth muscle, and the blood supply, the nerve supply, the lymphatics of it. When you are giving a local anesthesia, that is pudendal block, you must know the course of pudendal nerve. So it has got a very much important, quite relevant, the knowledge of anatomy. I think not only the beginners and students should have a very good and sound knowledge of anatomy, but the practitioners should keep on revising the knowledge of anatomy, because when we recently visited Cairo International Coloproctology Association, there we learned that the concept of loop sphincter has come up. What we call internal sphincter, external sphincter. Now there is a lower loop, median loop, and upper loop, the concept. So the concepts keep on changing, and you will have to keep yourself abreast and knowledge with the latest information added to it. ऐसा नहीं है कि once anatomy learned, anatomy change होने वाली नहीं है. All right, anatomy will not change, but the concept will change. The thinking will change. When I was a student, the sphincter was really a taboo. Anorectal or proctologist or surgeons never used to touch the sphincter. Forget about while doing any operation, if sphincter is damaged, surgeon डर जाता था, अरे बाप रे, sphincter को damage हो गया, anal incontinence हो जाएगा अभी. But now they are cutting the sphincter. Sphincterotomy is a norm in the fissure operation now, and they are repairing sphincter like anything. So concepts keep on changing. You must have a sound knowledge of anatomy. That's my opinion. Thank you. Here I would like to add some more. Mind well, anorectal is a part of the surgery which is learned in practice. So my humble request to all the people, all the students or all the anorectal practitioners is that try to learn surgery before you start anorectal surgery, because the principle on what it is based, that's very useful to anorectal surgery. When we talk about anorectal anatomy, here one differentiation I would like to make. Now you have got something what is known as a cadaver or the dead anatomy, another is a living anatomy. When you work on the living patient, mind well, there is a lot of difference. When you do a dissection on a table which is dead, you don't have a feeling of the tissues. You are just shown that this is muscle, this is fiber, this is vessel, this is vein. But when you are actually working on the patient,
is a living organ. And the touch and the feeling, that you have to understand very much, I'll tell you. Right now, there is no alternative to the feeling of our hands which one should learn, and it is by practice, I'll tell you. And mind well, whenever you are trying to do anything on the person's anorectal region, it has got great implication. Because one thing, because of shy, the person doesn't tell you. Second thing, the area is not visualized. No one can see its own. No doubt there are some very entrepreneur people who get their mobile below and take a picture and come to you की सर आम्हाला हे झालेलं आहे डॉक्टर काय सांगा तुम्ही. पण सांगायचं मला असं आहे की जोपर्यंत आपण त्या भागाचं पूर्ण परीक्षण करायला शिकत नाही आणि ते सुद्धा आपल्या हाताने, तोपर्यंत आपल्याला सांगतो ह्या आजाराची माहिती आपल्याकडे अर्धवट राहणार आहे. So it's very important to learn on human being or living people how to examine a patient whenever anorectal problem is there. Thank you, sir. Second question is related to prevalence of anorectal diseases, which are increasing now. And Dr. Gupta is a perfect person to start with this answer. Well, before coming to Latur, actually, I was asked Dr. Shah to give some written material to be printed in the souvenir. I am extremely sorry that because of my exhaustive work schedule, I was not able to write and send a paper. But one subject I had always in mind that in today's anorectal practice, definitely there is something known as emerging challenges in this anorectal practice. 20 years back, Dr. Sanghi will tell you more, that proctology was always considered to be the last preference for any surgeon, I'll tell you. Maybe for two reasons. One thing, knowledge was less, instruments were less. Secondly, even money was less. A anorectal practice was considered to be the lowest category in the surgery, I'll tell you. People used to always like abdominal surgery, thoracic surgery, and there was nothing, till today, in surgery there is nothing like anorectal specialty, I'll tell you, still today. Whatever you see, coloproctology or colorectal surgeons, they are all self-declared surgeons and they have done some training under a good institution. Now recently the associations have started fellowship and probably we have formed this association for that purpose only. If you all become members, and probably I think in the coming years we will also have a fellowship program for the practitioner as well as the members. But talking of anorectal practice in today's era, I can tell you, every individual, whether he is a general physician or a practitioner of any pathy, I will tell you, whether it is an Ayurveda, whether it is a homeopathic or a modern, definitely once in 2 days he come across an anorectal problem patient, I tell you. What is the reason? There are a number of reasons. Till yesterday we used to always say कि जो करे जास्त स्पाइसी खातो है, ज्याचा करे बिहेवियर बरोबर नहीं है, ज्याचं खाणं बरोबर नाही आहे, त्या लोकांना हे आजार होतात. पण ती परिस्थिती आज राहिलेली नाही आपल्याला सांगतो. आज करे आपल्याला करे विचार करत असताना खूप गोष्टींचा विचार करावा लागतो. केवळ करे त्याचं खाणं बरोबर नाही आहे हे एक कारण होऊ शकत नाही. केवळ करे तो कुठून तरी गरिबीमधनं आलाय म्हणून त्याला असं म्हणता येत नाही. कारण हा आजार श्रीमंताला सुद्धा व्हायला लागलाय. हा आजार हुशार ज्याला म्हणतो इंटेलेक्च्युअलला पण व्हायला लागलाय. हा आजार तो लेबरर आहे त्यालाही होतोय. आता मुंबईसारख्या काही शहरामध्ये जे संगवी डॉक्टर काम करतात तिथे त्यांच्याकडे असे कितीतरी कॉर्पोरेट लोक येतात. वास्तविक बघायला गेलं त्या लोकांना हे आजार व्हायचं काही कारण नाही. कारण त्यांना तर आजार होणार म्हणजे हायपरटेन्शन आहे, डायबिटीज आहे, किडनी प्रॉब्लेम आहे. पण आपल्याला सांगू इच्छितो की ह्या सगळे जे आजार आलेले आहेत ज्याला आम्ही आज लाईफस्टाईल डिसऑर्डर म्हणतो त्याबरोबर करे हे आजार सुद्धा त्याच्यावर यायला लागले. आणि आपण प्रॅक्टिस करत असताना आपल्याला लक्षात येईल की आपण प्रॅक्टिस
करताना पेशंट ज्या वेळेला आपल्याकडे येतो त्याला आम्ही विचारतो तुला डायबिटीज आहे का, हायपरटेन्शन आहे. कारण प्रत्येक 3-4 पेशंटच्या मागे तुम्हाला एक पेशंट मिळणार ज्याला हे 2 आजार आहे आज. आणि ह्या दोन्ही आजाराचं ट्रीटमेंटबद्दल आजही भ्रमित अवस्था आहे. किती लोकांनी सांगा दो, कारण हे दोन्ही आजार न बरे होणारे आहे. तुम्हाला सांगतो, तुम्ही असे माणसं दाखवा की ज्याला काय हायपरटेन्शन डिटेक्ट झालं आहे आणि ते आजार बरं झाले, डायबिटीस डिटेक्ट झाला आहे आणि तो क्युअर झाले. लक्षात घ्या, फरक हा मोठा आहे. म्हणून मी काही वेळेला आपल्याला चरकलकारे नेहमी मानतो की त्याने आजारांचं वर्गीकरण करत असताना तुम्हाला एक साध्य दिला, एक कृष्ण साध्य दिला आणि एक असाध्य दिला. त्या कॅटेगरी कुठेही चेंज होत नाही. हे दोन्ही आजार आपले कृष्ण साध्यमध्येच मोडतात आणि दोन्ही आजार मरेपर्यंत राहतात. पण ह्याला जी औषध उपाय योजना केली जाते त्याच्यापासून होणारा हा एक प्रॉब्लेम मोठा आहे. आपल्याला सांगतो, उदाहरण द्यायचं झालं, ॲस्पिरिन क्लोपिड्रॉल खाणारे लोक आहे, तुम्ही चौकशी करून बघा त्या लोकांना हे प्रॉब्लेम येतात का नाही. डायबिटीसची औषधं खाणारे लोक आहेत त्यांना तुम्ही विचारून बघा त्यांचं बावालची काय परिस्थिती आहे. स्टॅटिन घेणारे लोक आहे कोलेस्ट्रॉलसाठी, त्या लोकांना काही आजार होतात का नाही विचारा तुम्ही. आणि मी सांगतो, माझ्याकडे गेल्या 5 वर्षामध्ये डायबिटीज हायपरटेन्शनने सफर करणारे आणि त्याच्या अनुषंगाने फिशर, पाईल्स आणि फिस्टुला घेऊन येणारे लोकांची संख्या वाढली आहे. आणि नुसती वाढली नाही आहे, त्यांची चिकित्सा करताना सुद्धा मोठी कसरत आहे. कारण त्यांचा फिटनेसचा विचार करावा लागतो, त्याचा हिलिंगचा विचार करावा लागतो. आणि हे करत असताना आपण जर आपल्या ज्ञानाची काळजी घेतली नाही तर आपण अडचणीत जाऊ शकतो. त्यामुळे मला असं वाटतं की येणाऱ्या काळामध्ये आजाराची जी कारणं काही काळ आपण जे वाचत होतो त्याच्यापेक्षा नवीन नवीन कारणं येणार आहेत. जसं खरं डायबिटीज हायपरटेन्शनला आपण नेहमी बघतो किंवा थायरॉइड डिसऑर्डरचं प्रमाण वाढलं आहे. रोज लोक सांगतात पिझ्झा बर्गर खातात म्हणून होत आहे. तर मला वाटतं पिझ्झा बर्गर खाऊन हे आजारसुद्धा वाढत आहेत, असं काही नाही आहे. दुसरं मी म्हटलं, लोकांची झोप, लोकांचं खरे खाण्याचं टायमिंग हे सगळं बदलत चाललं आहे. कालचं जे ब्रीड वाक्य होता की लवकर उठा आणि लवकर झोपा, हा चेंज झाला आहे आता. प्रत्येकाचा घरात करे त्या मुलाला तुम्ही सकाळी 6ला उठायला सांगा, तो म्हणतो मी 10 वाजेपर्यंत झोपतो म्हणतो. झोपायला लवकर 10 वाजता सांगा, तो म्हणतो मी 12 वाजेशिवाय झोपणार नाही. पूर्वीच्या लोकांचा करे अभ्यास सकाळी 4 वाजता उठून व्हायचा. आज मुलं म्हणतात की नाही रात्री अभ्यास चांगला होतो. आता मला सांगायचं काय आहे की ह्या गोष्टी चुकीच्या जरी असल्या तरी समाजात एवढ्या झपाट्याने वाढत चाललेल्या आहेत आणि ती जी कॉम्पिटिशनची रेस आहे त्याच्यामध्ये कोण जिंकणार आहे कोणाला माहिती आहे. पण आजाराचं प्रमाण नक्कीच वाढत चाललेलं आहे. थँक्यू. सोलंकी सर, आपको. एनोरेक्टल प्रॅक्टिशनर खूप कमी आहेत, स्पेशली फिमेल एनोरेक्टल प्रॅक्टिशनर्स, आणि त्यांना खूप वाव आहेत. आता डॉक्टर राजेश गुप्तांनी सांगितल्याप्रमाणे जोपर्यंत हे चायनीज फूड, पिझ्झा, बर्गर, मॅकडोनाल्ड आउटलेट वगैरे आहेत, मी तर नेहमी विद्यार्थ्यांना सांगतो की ऑर्थोपेडिक सर्जननी दरवर्षी म्युन्सिपाल्टीच्या रोड डिपार्टमेंटला एक गिफ्ट पाठवायला पाहिजे, त्यांचा सत्कार करायला पाहिजे की तुमचे जेवढे रोडवर खड्डे आहेत त्यामुळे आमची ऑर्थोपेडिक प्रॅक्टिस चांगली चालते. तसंच ॲनोरेक्टल प्रॅक्टिशनरनी देखील हे गाडेवाल्यांना दरवर्षी बुके पाठवायला पाहिजे आणि गिफ्ट पाठवायला पाहिजे की तुम्ही असेच गाडे चालू ठेवा, मॅकडोनाल्ड चालू ठेवा, पिझ्झा बर्गर चालू ठेवा, आमच्याकडे ॲनोरेक्टल पेशंट भरपूर येत राहतील. त्यामुळे ह्या प्रॅक्टिसला भरपूर वाव आहे दिवसेंदिवस. थँक्यू. बहुत सारे क्वेश्चंस आए सर पब्लिक से एंड आई एम हैप्पी, लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं. उसी से रिलेटेड है सर कि डायग्नोसिस ऑफ एनोरेक्टल डिसीज, वो बड़ा ही क्वेश्चन है बट उसको 5 मिनट में आप ब्रीफ में रिसेंट एडवांसेस उसमें प्रीवियस. लेक्चर थे आपको दिखाने के लिए लेकिन टाइम नहीं परमिट किया, मैं माफ़ी चाहता हूँ. डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले आयुर्वेद के जो अपने पाप बताए हैं कि उसको पहले आप प्रश्न करो, प्रश्न करने के बाद में जो है उसकी हिस्ट्री लो. नाउ व्हाट आर द मेन कंप्लेंट्स ऑफ द एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स, कि भाई उसको दर्द होता है, ब्लीडिंग होती है, खुजली आती है, मल प्रवृत्ति साफ नहीं होती है,
मल करते समय या तो उसके आसपास से कहीं से भी कुछ डिस्चार्ज होता है, ये इतनी मेन कंप्लेन है। कभी सूजन हो जाती है, वो सूजन बाहर आती है, वापस जाती है, नहीं जाती है, परमानेंट रहती है। द सिंपल क्वेश्चन। इसी के ऊपर से ही यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो 80% डायग्नोसिस आपका ऑन टेबल ही हो जाता है। सिंपली यदि मुझे बताना है कि ब्लीडिंग पर रेक्टम, तो जो है जिसका जो प्रश्न है उसको दे दे, जिसको तुमको देना है उसको। तो वो जो है वो आप जब देखेंगे तो अगर विथ पेन है और स्टूल के बाद में उसको 1 या 2 ही बूंद आता है और या तो स्टूल के साथ में सटा हुआ लाइन जैसा आता है, डायग्नोसिस इज मोर गोइंग टू द फिशर साइड। संडास जाने से पहले, संडास करते समय या संडास जाने के बाद में अगर ब्लीडिंग होती है बाय ड्रॉप्स, परफ्यूज या तो फ्लावर जैसा, 90% डायग्नोसिस इज इंटरनल ब्लीडिंग पाइल्स। थर्ड, पेशेंट ये बोलता है कि मुझे बाद में कुछ सूजन है साइड में, मुझे बुखार जैसा होता है, बैठने को तकलीफ है। इट गोज टू मोर तो भगंदर पीढ़ी का एब्सेस साइड जा रहा है। कभी कभी स्टूल भी रुक जाता है, कभी कभी यूरिन रिटेशन भी हो जाता है। और चौथा, कहीं से भी उसमें से डिस्चार्ज होता है, इनसाइड या आउटसाइड, तो इट गोज मोर टूवर्ड टू द फिस्टुला साइड। अभी सबसे बड़ी हिस्ट्री है स्टूल, कितनी बार मल प्रवृत्ति है, मल के साथ में कुछ स्त्राव होता है कि नहीं, म्यूकोस आता है, उसके साथ में ब्लड आता है, तो कलर ऑफ ब्लड कैसा है? क्योंकि पेशेंट आएगा ना, उसकी बीमारी नीचे नहीं है, यहां पर है। किसी भी पेशेंट को पूछेंगे साहब लोटा भर के ब्लीडिंग हो गई, बाल्टी भर के ब्लीडिंग हो गई, लय कमजोरी ये थे, 2 बूंद घेताना। और साली सबसे बड़ी ताकत ये है कि अब तो वेस्टर्नाइज हो गए, नीचे पानी का टब पड़ा है, उसमें जैसे होली में रंग डालो, बाल्टी में 2 बूंद और हो जाए तो उसको लगता है पूरा बाल्टी भर गया। सो दैट यू हैव टू सीन इट कि भाई उसकी क्या है। अब ये हो जाने के बाद में आप उसको देखेंगे, उसके बहुत सारी पोजीशन है, लेटरल, राइट लेटरल, नी एल्बो, जैकनेप, लिथोटॉमी, व्हाटएवर द सूट टू यू। अब पीआर किसको करें और किसको न करें, पर रेक्टल एग्जामिनेशन, तो पेशेंट को पहले काउंसिल करना पड़ता है। पेशेंट को ऐसी पोजीशन में रखो ताकि उसके प्राइवेट टाक ढका रहे। दूसरी बात यह है कि किसी भी फीमेल किसी भी एज में देखो, बिना फीमेल असिस्टेंट मत देखो, और सबसे पहले उसके प्राइवेट पार्ट को ढक दो और बात ऐसे करो कि उसको इसमें विश्वास हो जाए। जैसे मैं कोई यंग लेडीज है तो मैं बोलती हूँ बेटा सो जाओ, मीडियम एज है तो उसको भाभी नहीं बोलता, बहन आप सो जाओ, और बड़ी उम्र की है तो बोलता हूँ माता जी सो जाओ, तो उसको लगता है भाई डॉक्टर साहब सेफ है। डॉक्टर साहब का इंटेंशन अच्छा है, इसीलिए वो अगल बगल कहीं उंगली नहीं करेंगे, सही जगह पे ही करेंगे। ऐसा तो आपकी नीयत, आपकी आंख और आपकी बोलने में कहीं पर भी विकार नहीं होना चाहिए। एनोरेक्टल सर्जन को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये दोनों को लागू पड़ता है। फिर उसके बाद में जब आप ग्लोव्स पहने उसको समझाइए कि आप क्या करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सीधा घुसेड़ दिया जैसे तीर मारते और गोली मारते हैं, पेशेंट टेबल पे ही उड़ जाएगा और फिर आपको चिट्ठी लिख के जाएगा ये इलाज है तो मैं घर पे कर लूंगा या कर लूंगी। So that way you should inform him, put the finger inside, then come back, then you go and do. Put it full finger inside. But if pain, spasm, patient is not allowing, don't do forcefully, you will get a vasovagal shock. या it start the bleeding. प्लीज वो न करें। फिर उसके बाद में प्रोक्टोस्कोपी है, फिर सिग्मोडोस्कोपी है, कोलोनोस्कोपी है, वर्चुअल वीडियोस्कोपीज है। These are the instrument which can use in OPD to diagnosis for this. आगे इसके बाद में हमको ऐसा लगता है कि नहीं भाई इसकी अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, क्रॉन्स हो सकता है, या IBS है, या कुछ ऊपर पॉलिप्स है, या कैंसर है, समथिंग लाइक दैट, तो वी कैन एडवाइज हिम फॉर द कोलोनोस्कोपी या तो वर्चुअल कोलोनोस्कोपी कैप्सूल लेकर जो करते हैं वो। इसके बाद में अगर एब्सेस है,
फिस्टुला है, या आपको देखना है कि ट्यूमर इनसाइड से, तो 2D एंडोएनल रेक्टल से आप सोनोग्राफी करके आप देख सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यू से आप जो है वो देख सकते हैं। और ये जो 2D वाला जो है दैट इज मोर बेटर बिकॉज यू कैन सी द ल्यूमेंस, यू कैन सी द स्फिंक्टर्स। वैसे अभी हमारे दो एक्सपर्ट्स ने मेरे साथ में जो आपको बताया, यू कैन सी द होल एरिया एंड यू कैन यूज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट आए थे बेसले थोड़े से जरा टोपी वोपी बगीटली में, पेशेंट जो है अगर है तो इन्वेस्टिगेशन उसी लिए कराओ कि आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने को मिले एंड यू कैन मेक एन अ लाइन ऑफ ए ट्रीटमेंट। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट खुद सपोज करता है, सर एमआरआई करूं टाका, पेशेंट है पाइल्स का, अब उसमें एमआरआई क्या आएगा? सगळे पेशंट येते रिक्षा घेऊन, साहेब मला पाहिलं झाला लेझरने करा असं. थिंग इज दैट यू शुड हैव टू डिसाइड कि आपको कहाँ कंफ्यूजन है डायग्नोसिस करने के लिए, और उसी के लिए सब कराइए. ये एक बहुत जरूरी है. और दूसरा ये करिए कि भाई ये जो पाइल्स आपके हुए हैं वो नीच कारण से हुए हैं, आगंतुक कारण से हुए हैं कि एसोसिएट डिजीज है, जैसे गृहिणी, अतिसार, प्रवाहिका. इसके अलावा जो है आप देखते हैं क्या है, पोर्टल हाइपरटेंशन, सर ने जैसे बताया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सीकेडी, थायराइड, बहुत सारे एसोसिएट डिजीज की वजह से भी पाइल्स होता है. तो वहां पर चरक सुश्रुत दोनों ने लिखा है कि जब तक मूल कारण की चिकित्सा और ये उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये कुछ नहीं है. हम जो कर रहे हैं एनोरेक्टल डिजीज की जो सर्जरी कर रहे हैं वो लोकलाइज डिजीज है, कॉज इज समवेयर सैर. और इसीलिए हम क्यों मतलब जो है फेमस है कि हम सर्जरी कर देते हैं, क्योंकि अगर पहले से चिकित्सा कर दी तो वो आएगा ही नहीं वापस. इसीलिए पहले काट पीट लेते, फिर 3 महीना उसको परहेज करते हैं और उसको दवाइयाँ देते हैं ताकि अपनी दुकान चले. बीबी भी खुश, हम भी खुश और पेशेंट भी खुश. ठीक है. तो थिंग इज दैट कि यू शुड नॉट थॉरोली एनाटॉमिकल नॉलेज, उसके रोग के कारण और कैसे तपासना और उसकी इथिक्स, ये आपको निहायत जरूरी होता है. और कोई भी काम करे विदाउट काउंसलिंग न करें, पेशेंट को फेथ में रखकर करे, और जितना पेशेंट आपको कोऑपरेट करता है उतना ही इन्वेस्टिगेट करें. पेशेंट आपके पास आता है, बोलता है मुझे पाइल्स की ट्रीटमेंट करो. अब मैं बहुत ही उग्रवादी दिमाग का आदमी, मुश्किल से ठंडा किया इन लोगों ने, तो मैंने एक चित्र बना के रख लिया है. 28 किस्म के पाइल्स है, उंगली रख मैं तेरी ट्रीटमेंट करता. क्योंकि कोई दिखाना नहीं चाहता है और कोई देखना नहीं चाहता है. हमको देखना है तो कोई राजी नहीं है देखने का लिए. अब वो कंफ्यूज हो जाता है. देख भाई मैं तेरे को दवा देता हूँ, ठीक नहीं होगा, 1000 रुपया लूंगा मैं, तो फिर इसमें फिर बोलना नहीं कि भाई ये यही पाइल्स है, मैं तो उसी की ट्रीटमेंट कर रहा हूँ. साहब देख लो, 100 में से एक पेशेंट चला जाए तो जाने दो, लेकिन ये नहीं कि ब्लीडिंग है इसके लिए कुछ रक्त स्तंभक चिकित्सा लिख दी, ये लिख दी. क्योंकि एक सामाजिक वो उगड़ है हमारे वहाँ पर, ऐसा शिक्षण नहीं है कि लोग कपड़ा खोल के देखें. मैं जर्मनी गया था 2008 में फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में एज एन ऑब्जर्वर और फिस्चुला ट्रांसलेशन के लिए. तो उन्होंने अपने पेशेंट के फिस्चुला के देखे, बोले भाई फिस्चुला में तुम हमारे बाप हो, हमारे वहाँ ऐसा फिस्चुला नहीं होता है. बोले तुम नीचे ओपीडी में जाओ, एक पेरिनेल एब्सेस की यंग लेडी आई, मैंने बोला कपड़ा निकाल के लेट जा, पूरा निकाल के लेट गई. और यहाँ पर उसको ऊपर कपड़ा करने के लिए जरा 50 बार झंझट होती. और गलती से भी अगर मेंसिस की ट्रीटमेंट पूछ ली 70 साल की बुढ़िया तो भी, अरे बवासीर का इलाज करो ना, इसका क्या काम है, बहुत साल हो गवा. अब ये समझ में नहीं आता है उस बहन को, माँ जी को, कि अगर मैं उसकी मेंसिस हिस्ट्री जाने की पूछता हूँ तो आयुर्वेदिक पद्धति से मैं सोचता हूँ कि उसको वातज तकलीफ थी, पित्तज की थी, या रक्त दोष था, या उसको कष्टार्थव था, या अत्यार्थव था, उसके हिसाब से मैं उसकी ट्रीटमेंट करूंगा. एवरीथिंग इज रिलेटेड, यू नो. सो द थिंग इज दैट व्हाट आई हैड गिवन अ सब्जेक्ट इज दैट हाउ टू डायग्नोसिस एंड what are the instrument of modern today is will be used today. Virtual you know the एंडोग्राफ आया है, उसमें आप डाल दो, आपको प्रिंट आउट निकाल के पेशेंट को दे सकते कि तुमको ये है. बट विमान उड़ाने से पहले साइकिल चलाना सीखे, साइकिल चलाने से पहले जॉगिंग करना सीखे. और मैं ये चाहता हूं कि कुछ दिनों में आप सब लोग चार्टर प्लेन में घूमें
और मैं नीचे से देखता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। इट इज़ अ सिंसियर रिक्वेस्ट, जो क्वेश्चन भेज रहे हैं अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखें, क्योंकि अगर टाइम कम होगा तो आंसर नहीं दे पाएंगे, बट वी कैन आंसर ऑन योर फ़ोन। ओके, नेक्स्ट, पेशेंट कंप्लेन लेके आता है कि मलबद्धता, कॉन्स्टिपेशन, बराबर है। हर एक का कॉन्स्टिपेशन का डिफरेंट डेफिनेशन अलग अलग रहता है। एक बार हुआ, 2 दिन में एक बार हुआ, 3 दिन में एक बार हुआ, बट जनरली एनरेक्टल डिसीज के लिए मलबद्धता या कॉन्स्टिपेशन को रूट कॉज कहा जा सकता है, वन ऑफ द रूट कॉज। तो डॉक्टर सोलंकी विल बी, आई विल बी वेरी हैप्पी सर ने इसका आंसर किया। Constipation. I really congratulate organizers for organizing this session post lunch. संडास की जगह की बीमारी, उंगली घुसड़ना और कॉन्स्टिपेशन, ये सब बातें अगर प्री लंच सेशन में होता तो लंच के लिए कितने लोग जा पाते, मुझे शंका है। Anyway, talking about the constipation, it's a huge topic. Several hours discussion is required. In nutshell, I'll tell one or two things. The definition of constipation, constipation किसे कहते हैं? अभी तक उसको formalize या उसकी formal definition नहीं हुई थी। पिछले 5-10 सालों में ये हुआ है, the consistency of the stool should be soft. At least there should be one defecation in at least 2 days or 3 days. वेस्टर्न कंट्रीज में 8 दिन में एक बार टॉयलेट पे जाते हैं, हमारे यहाँ लोग 1 दिन में 2 बार जाते हैं मिनिमम, उसको नॉर्मल बोलते हैं। सो नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन किसको बोलना चाहिए, इस बारे में फिर से कंट्रोवर्सी है, बट देन इट इज फाइनलाइज। देयर इज ए ब्रिस्टल स्टूल चार्ट नाउ अवेलेबल, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड यू विल रियलाइज व्हाट इज कॉन्स्टिपेटेड एंड व्हाट इज नॉन कॉन्स्टिपेटेड। टॉकिंग अबाउट एंड देन जितने भी व्याधियों के दुष्परिणाम है उसमें कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा, नॉट ओनली एनोरेक्टल रीजन, अदर डिसीजेज ऑल्सो बहुत बड़ा रीजन है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मैनेजमेंट की जब बात करता हूँ मैं, तो आई स्टार्ट टॉकिंग फ्रॉम नॉन मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, यानी बिना औषधि के कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट करना है। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ टाइम कॉन्स्टिपेशन इज नॉट ए प्राइमरी डिसीज और इट्स नॉट ए डिसीज एज सच, इट इज ए एक्वायर्ड थिंग। कॉन्स्टिपेशन हमने खरीदी हुई ये कंडीशन है, हमने जात मोल उसको एक्वायर किया हुआ ये है कॉन्स्टिपेशन, ये कंडीशन। So there is a non-medicinal treatment that you have to regularize the bowel movement and you have to accordingly eat the quality of the food you are eating. But besides that, one has to be active person, because intestines, colon, rectum, it's a muscular tube, and wherever there is a muscle in the body, it needs exercise, it needs active. If you exercise, keep your muscles fit, they function well. So in order to keep the intestines working nicely, you need to be very active. Those who are not working out, those who are not jogging or walking, those who are not active, गल्ले पे बैठे हैं 8 घंटा 10 घंटा क्लरिकल जॉब है, बैंक में बैठने का जॉब है, they get constipated easily. So one thing non-medicinal treatment is one has to be active in order to not get constipated. The second important thing is lukewarm water, what Ayurveda recognize as a koshna jal pan. Drink lukewarm water. Get up in the morning, drink a glass of lukewarm water and you will not get constipated. Then eat wisely. Have very good component of residual or what roughages or fiber part in the diet. That is the modern concept. Even Ayurveda recognizes, but then what Charak says is totally little different from what allopathy suggests as a dietary term. Again, this is a wide topic in itself. And then comes the role of some medicines which are purgative, laxative, etc., etc. Ayurveda also recognizes, and Sharangdhar has given a list of Ayurvedic herbal medicines where it starts from Anuloman to Malbhedan, Shrausan, Rechan, etc. There is a wide range. Allopathy does not give that wide range of herbal preparations which are bowel cleansing agent as such. So these are the variety of ways the constipation is managed. Well, I have got some more
to talk upon this thing. Very simple, I can tell you. This constipation means that you are unable to pass stools properly at proper time. That is my feeling. And I feel, Ayurveda has been very correctly asking you the person's lifestyle, I'll tell you. और कोई साइंस में तुम पढ़ोगे नहीं कि वहाँ लिखा है कि ब्राह्मण मुहूर्त में उठो और मल त्याग करो. ये खाली अपने आयुर्वेद में है और ये बहुत राइट है. तुम उसको स्पिरिचुअल थिंकिंग बोलो, तुम फिलोसॉफिकल थिंकिंग बोलो. और इसका उदाहरण आपको मिल गया कि एक जनरेशन जो आज कह रहे 70s के ऊपर है, वो पूरी जनरेशन आज सवेरे जब उठती है, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट मॉर्निंग डिफिकेशन. आई टेल यू, अगर उनका कहीं तो भी वो डिस्टर्ब हो गया, वो पूरा दिन आदमी डिस्टर्ब रहता है. यानी इतना उसको महत्व है. इसलिए 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, आई डोंट एग्री विथ ऑल थिंग्स. 24 घंटे में एक बार, वो भी राइट टाइम पे होना बहुत जरूरी है. और उसके लिए मैंने बताया ना कि इंडियन जो सीनरियो है उसके जहाँ हमारे पास 12 दिन का समय है, सॉरी 12 घंटे का दिन है और 12 घंटे की रात है, डेफिनेटली व्हेन द मॉर्निंग स्टार्ट्स, दैट इज द राइट टाइम टू डिफिकेट. Apart from the persons who are in different occupations where they don't get time, but otherwise I'll tell you, the person who has a habit of passing his morning things properly, उसको बीमारियां कम होती हैं. And here I would like to quote one very good work I am telling you, which probably may not be doing it. There is something known as uretrovesical reflex, which is seen in newborn children, I'll tell you. This is with the urology I am talking. इसके ऊपर बहुत कुछ हुआ. पीडियाट्रिक सर्जन, पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट, ये सभी लोग थक गए क्योंकि उन बच्चों में यूरिनरी इन्फेक्शन का रेट बढ़ते जाता है. दे लैंड इनटू किडनी प्रॉब्लम एंड दे डाई बिकॉज ऑफ किडनी डिसऑर्डर. बेंगलुरु में एक गृहस्थ जो कह रहे पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट था, ये सब 5 साल के उम्र के बच्चों को वो स्टडी कर रहा था. और स्टडी करते समय उसके ध्यान में आया कि ये ट्रीटमेंट करके तो हम थक गए. मीन्स ट्रीटमेंट बहुत कुछ था, इंट्रायूट्राइन इंटरवेंशन भी था उसके अंदर. उसके अंदर कुछ इंजेक्शन करे यूरेट्रिक ऑर्फाइस को देते थे, सर्जिकल कुछ करते थे, लेकिन ये सब फेल हो गया. और उसने इन बच्चों का कह रहे जब पूरा हिस्ट्री टेकिंग किया, उनके माँ बापों से बात किया, और आपको मालूम है कि आजकल कह रहे 1 चाइल्ड का एक कार्यक्रम बहुत चलता है. न्यूक्लियर फैमिली, माँ बाप है और एक ही चाइल्ड है. वहाँ उसको मालूम पड़ा कि ये सभी बच्चों में कॉमनली एक प्रॉब्लम था कि वो सवेरे उठ के कह रहे मल त्याग के लिए नहीं जाते थे. उसने कुछ कह रहे जिसको बोलते हैं वॉलंटियर्स तैयार किए कि जो इनको सिखाएगा. माँ बाप के लिए स्पेशल सेशन लिए, ये बच्चों को आप सिखाओगे कि कह रहे सवेरे उठ के कह रहे आपको मल त्याग के लिए जाना है. और वो सुनते समय मुझे अच्छी तरह याद आया कि जब मैं छोटा था तो मेरे भी माँ बाप मुझे बोलते थे कि जाओ आप जाके आ जाओ, भले आपको नहीं आता तो भी जाके आ जाओ. और उस समय कह रहे घर के अंदर टॉयलेट नहीं तो बाहर जाना पड़ता था. तो कभी कभी ये सब बातें जो है उस समय लगती हैं कि हमको कह रहे ये लोग माँ बाप हमको भगाते थे जाओ करके आओ. लेकिन वो सुनते सुनते मुझे ध्यान में आया कि जब उसने आगे का जब बताया जाए 2 साल तक बच्चों को ये सब सिखाने के बाद जब वो बच्चों में इम्प्रूवमेंट हुआ, उसका जो स्टडी रिपोर्ट है यूरेट्रोवेसिकल जो रिफ्लेक्स था, इट केम डाउन बाय 70%. यानी एक सिंपल चीज थी कि सवेरे उठ को हमको कह रहे जाने का मल त्याग करने के लिए, जो लोग फॉलो नहीं करते थे उतना करने से, रूटीन में आने से वो बच्चों की बीमारी 70%. सो इट वॉज ए फंक्शनल डिसऑर्डर and not an anatomical disorder. This is one incident just I am telling you that this problem is increasing in our society because we are trying to overcome the natural urges. और वो भी एक अपने आयुर्वेद की बहुत बड़ी देन है. हमारे यहाँ जो कह रहे शुरू में हमको बताते हैं वेग उदीरण और वेग धारण, ये आयुर्वेद की दुनिया को एक बड़ी देन है. इसके ऊपर भी अगर कोई अभ्यास करेगा, मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कल लास्ट का जो नोबेल पुरस्कार मिला है बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए,
उसी के लिए भी आपको नोबेल पुरस्कार मिल सकता है, लेकिन आपको स्टडी करना पड़ेगा और लोगों को दिखाना पड़ेगा कि कितनी सच्चाई है इसके अंदर। थैंक यू सर। इन कंटिन्यूएशन टू दिस, मैं सिर्फ दोनों से सहमत और असहमत हूं। सोलंकी सर ने बताया कि वेस्टर्न कंट्री के अंदर में 2 दिन 5 दिन तक नहीं जाता, एंड यूजुअली इट इज फैक्ट। जहां कहीं पर भी कोल्ड है, लेकिन उसके खाने में वेजिटेबल फाइबर डाइट्स नहीं है और वाटर नहीं है। इंडिया में पर्टिकुलर अपन एशियन कंट्री के अंदर में अपने वहां पर वेजिटेबल फाइबर डाइट और पानी पीने की आदत ज्यादा है। इसीलिए सर ने जैसे कहा, ऐसा करके जैसे ही आप स्टैंड होते हैं तो पूरा का पूरा जो स्टूल है वो नीचे आ जाता है और उसको रिफ्लेक्सेस शुरू होते हैं एंड यू पास द स्टूल्स। सर ने जैसे सोलंकी सर ने बोला कि सुबह गर्म पानी पियो, तो पानी पीने से आपकी स्टमक से ऊपर से जॉइंट के ऊपर, कॉलन के ऊपर प्रेशर आता है। इट स्टार्ट द पेरिस्टाइल मूवमेंट। फॉर दैट which I was supposed to tell you is that there is a manometry. हर constipation functional नहीं हो सकता। There are some of the anatomical structures कुंथन करने से, जो डिफिकोग्राम करने से मालूम पड़ता है कि ये स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है कि ये फंक्शनल डिफेक्ट है। फंक्शनल डिफेक्ट कैन बी क्योर्ड एंड द anatomical structural defect might you have to repair, you have to operate, or you have to give a support to the plexus that the stool pass very fastly. जैसे सिंपल एग्जांपल में मैं खत्म करूंगा क्योंकि हमको भी फास्ट भागना है, प्रश्न बहुत है। ओल्ड एज की फीमेल को नीचे से ब्लडर को अप कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका रिटेंशन ऑफ यूरिन जो है वो बढ़ जाता है और लीकेज ऑफ द यूरिन बढ़ जाता है। वैसे इंडिया के अंदर में पर्टिकुलर एशियन कंट्री में सबसे बड़ा झमेला ये है कि सूत्र दिया है और उसके लिए संस्कृत में एक शब्द प्रयोग है शौचानंद। बहुत किस्म के आनंद के बाद में ये शौचानंद शब्द जैसे साहब ने कहा ना, ऐसा करके मैं 1980 में बॉम्बे में आया। पहला दिन था मेरा 14 सितंबर और सुबह सुबह में मोबाइल था नहीं, फोन आया सेठ जी का, श्री राम जी के साहब मजा नहीं आई। इसकी माँ को सुबह सुबह में चाय तेरी बीबी ने अच्छा नहीं बनाया, उसमें मैं क्या करूँ। बोले नहीं नहीं, आपने जो चूर्ण दिया था ना वो बरोबर पेट साफ नहीं हुआ, इसके लिए मुझे मजा नहीं आई। अरे साला तेरा संडा साफ नहीं है, तेरे को मजा नहीं है, मेरी नींद क्यों खराब कर रहा है। But the stool moment is more psychological than the functional. और इसीलिए कायम चूर्ण, सायम चूर्ण, नित्य चूर्ण, फलाना चूर्ण बहुत बड़ा धंधा है। But just correctly said that required in education, you have to find out the cause. क्योंकि मेडिसिन मॉडर्न अगर लेते हैं तो भी कॉन्स्टिपेशन होता है। Abuse use of the hot tea and cold drinks, that also goes. So what is the cause? And according to the सारंगर संहिता, आपको क्या जरूरत है उस हिसाब से अगर आप फैसिलिटेट करेंगे तो मैं ये समझता हूं कि कॉन्स्टिपेशन नाम का कॉन्स्टिपेशन ना आपको होगा, पेशेंट खुश रहेगा, सुबह शौचानंद होगा, तो जो है आपके घर जरूर मर्सिडीज गाड़ी आएगी। थैंक यू वेरी मच। A word of caution again I will tell you, Western lifestyle, they are more prone to malignancy of the rectum. Just a minute. Malignancy of the rectum, malignancy of the colon, Crohn's disease. Now these diseases were uncommon in India, I will tell you. And today it is increasing. And the culprit factor is your lifestyle, I will tell you. देखो कॉन्स्टिपेशन कितना उसका ये है कि डॉक्टर्स को भी बहुत बोलना है। सर उसी से रिलेटेड नहीं, मुझे पता है शुभांगी मुझे क्यों रोक रही है। लातूर की सुकन्या है और अकेली फीमेल मेंबर है पैनल में, इसलिए बड़ी चालाकी से अपने आप को सेशन कंडक्ट करने के लिए माइक पकड़ लिया है। लेकिन उसके लिए एक प्रश्न आया है, मुझे अभी व्हाट्सएप पे प्रश्न आया है और वो है शुभांगी मैडम के लिए खास तौर पे, तो वो मैं पूछने वाला हूं उनको। भल्लातक और कूटच जैसे द्रव्य अर्श की चिकित्सा के लिए आयुर्वेद में वर्णित किए गए हैं, उसके बारे में आपका भाष्य चाहिए। और ये प्रश्न एक कन्या ने ही पूछा है, इस महाविद्यालय की स्टूडेंट ने। ओके, मेरे गुरुजन मेरे बाजू में बैठे हैं, मुझे वाइवा दिया जैसा लग रहा है, तो मुझे आज उल्टा करना था कि आप लोग वाइवा दे दो। एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन या बहुत सारे क्वेश्चन उसी पे आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग शायद नॉन प्रैक्टिसिंग सर्जन है, हुआ जो फिजिशियन है या टूल या आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं और सर्जिकल फील्ड से थोड़ा दूर है,
They are asking ki, is there any medical treatment to treat piles, fissure, fistula? And this question is related to that. And fortunately हम लोगों ने वो question add भी किया था, because every surgeon should be a good physician first. If you go through the सुश्रुत संहिता, निदान स्थान में पहला अध्याय वात व्याधि आता है, फिर अर्श भगंदर सब आता है, बराबर. सेम जब भी चिकित्सा स्थान खोलते हैं तो व्रण आता है, प्रमेय आता है, बाद में सब सर्जिकल डिसीज आते हैं. तो कंसेप्ट इज वी शुड हैव गुड फिजिशियन फर्स्ट. हर डिसीज को सर्जिकली ट्रीट करना ऐसा नहीं है. भल्ला तक के बारे में सर ने पूछा था. कूटजन भल्ला तक, यानी अगर अर्श का अध्याय देखा जाएगा तो पूरे अध्याय में कूटजन भल्ला तक के ऊपर अलग से एक श्लोक दिया गया है. दैट इज स्त्रावी अर्श है तो कूटज दे दो, एंड शुष्क अर्श है तो भल्ला तक दे दो. अगर स्त्रावी अर्श है, अगर स्त्रवन कर रहा है तो इतना पेनफुल नहीं रहता है. एज आई एम वेरी मच हैप्पी टू मैनेज द पेन. उसमें अगर शुष्क अर्श है तो इट इज़ मोर पेनफुल, एंड भल्ला तक विल act on painful condition very nicely, that is nervine condition, as pain is related to nerves. So कुछ द्रव्य रस से काम करते हैं, कोई वीर्य से, कोई विपाक से, कोई प्रभाव से. समूह भल्ला तक जो है नर्वाइन कंडीशन पे अच्छे से काम करता है, दैट इज़ पेनफुल कंडीशन में. तो शुष्क अर्श में भल्ला तक देके हम लोग पेन रिलीव कर सकते हैं. एंड शुष्क अर्श वैनिश नहीं होगा, कोई भी अर्श वैनिश नहीं होगा. अगर आपको नहीं हो रहा है मेडिकली उसको ट्रीट, तो वी हैव टू ऑपरेट दैट इज छेदन करना. एंड इसी अनुषंग में मैं गुप्ता सर से पूछना चाहूँगी कि मेडिकल ट्रीटमेंट इन एनोरेक्टल डिसीज, इस पर सर थोड़ा सा और प्रकाश डालें. Well, I feel that, any disease, has to be treated first medically, and if not, then only we move on to the surgical aspect ultimately. No doubt there are diseases which have got no other option. For example, hernia, there's no treatment. You have to go for a surgical. Hydrocele, there's no medical treatment. But piles, fissure, fistula have medical treatment. Fistula definitely is a surgical disease, but initially you have to initiate medical treatment so that your surgical outcome benefits. And last time when we conducted a conference at Malvan, I was very keen to have a person talking on medical treatment of ursh. But sorry to say, no speaker turned up. I tell you. हमने कई कॉलेजों को लेटर लिखा था कि आपके यहाँ से किसी को भेजो. I wanted person from रसशास्त्र, द्रव्यगुण और काय चिकित्सा to talk on those things. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे पास वो ऑलरेडी कह रहे 4-5 लोगों के पास से जाके आया रहता है. वो बोलता है मुझे दवाई में अब इंटरेस्ट नहीं है, और फिर से हम उसको दवाई के बारे में समझाएं, इट बिकम्स अ डिफिकल्ट जॉब. सो आई थिंक एवरीवन इन्वॉल्वमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेडिकल ट्रीटमेंट जो है डेफिनेटली आपको बताता हूँ, प्राइमरी पाइल्स, सेकेंडरी पाइल्स, सेकेंड डिग्री पाइल्स, मेडिकल ट्रीटमेंट इज ऑलमोस्ट जस्टिफाइड. And there is no need to go for any surgical intervention in these two conditions. Even 3rd degree, 4th degree pile, there is no reason to operate him immediately. So always you have to think of medical treatment, and as I told you, medical treatment is possible provided I understand his lifestyle, his cause of disease and related problems. Now there is a whole set of, I'll tell you, आप किताबों में चले जाओ, अर्शोग्न दवाइयाँ कई हैं, रक्तस्तंभक दवाइयाँ आहे, रक्तस्तंभक उपाय आहे, आणि अर्श चॅप्टरमध्ये तुम्हाला त्याची बरीचशी काही माहिती मिळते. आता 2 घटक द्रव्य जे इथे बोलले जातात, कुटज आणि भल्लातक, मला असं वाटतं की हे दोन्ही एकेरी द्रव्य कधी वापरले जात नाही. हे आपलं भान ठेवायला पाहिजे की भल्लातकला नुसता भल्लातक अर्शमध्ये कुठेही चिकित्सा करताना वापरलेलं नाही. आपल्याला सांगतो तो अन्य औषधांबरोबर कार्य एकत्र करून कार्य त्याचा वापर कार्य भल्लातकचा आहे. भल्लातक मधला 2 प्रॉपर्टी आपल्याला समजून घ्यायला पाहिजे. एक तर उत्तम दीपन द्रव्य आहे ते, आणि दुसरी गोष्ट विष आहे ते. कुठलाही विषारी द्रव्य जे आहे ते शरीरामध्ये तुम्ही जर योग्य मात्रात यूज केला तर शीघ्र औषधाचे गुण दाखवतो. जसं आपल्याकडे कार्य सर्पविष वापरलेला आहे, त्याचा उद्देश एवढाच आहे की त्याचा जो ॲक्शन आहे शरीरावर ते
खूप फास्ट आहे किंवा लवकर आपल्याला गुण देणार आहे. आणि भल्लातक जो आहे तो निश्चितच करे आपल्याला वातज किंवा कफदर्शामध्ये यूज करता येते. पित्तदर्शामध्ये आणि रक्तदर्शामध्ये अजिबात वापरू नका परत सांगतो. आणि कुटच सुद्धा जे आहे मी आपल्याला सांगतो काय कुटचचा वापर जे येतो ते परत करे त्या अडचणमध्ये येतो. आणि बरेच वेळेला हे अर्शचे रोगी असतात त्याच्यामध्ये अतिसारचं कार्य उदाहरण असतो त्यांच्याकडे आहे कुठेतरी पास्टमध्ये प्रवाहिकाचं आहे. तर ह्या गोष्टींचा विचार करून आपण जर ह्या द्रव्यांचा वापर केला तर त्याचा उपयोग जास्त दिसतो. ओनली द लास्ट रेफरेंस चरक चिकित्सा अध्याय 15 श्लोक 114-115 उसमें कृष्ण आत्रेय जी ने नागराज्य चूर्ण नाम का एक चूर्ण लिखा है. 10 चीज का उसमें कैलकुलेशंस है. आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो ढूंढ लीजिए. उसमें ये लिखा है कि भाई अर्श प्रवाहिका और ग्रहणी और अतिसार ये एक दूसरे की वजह से हो सकते हैं. और इफ यू आर नॉट कि किसकी वजह से क्या हुआ है तो नागर मुस्ता कुटज इंद्रियु बेलगिरी पाठा कुटकी रसांजना अतिविसा ये 10 द्रव्य है. संभाग लेकर तंदुलों के साथ में दे देने से कहा है कि कृष्ण आत्रेय द्वारा जीतिए. आपको कुछ समझ में आए ना आए ये आप दे देंगे तो मैं ये समझता हूँ कि पेशेंट आपको जरूर यश देगा. थैंक यू वेरी मच. एक स्टूडेंट और टीचर का आंसर में यू कैन जज द डिफरेंस. थैंक यू सर. सर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं सर्जरी रिलेटेड, बहुत सारे हैं. एक मैं ग्लिम्स में बोलती हूँ कि एडवांस ट्रीटमेंट फॉर पाइल्स प्रेशर फिस्टुला इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. तो संघवी सर इस पर थोड़ा सा बात करें. एडवांसेस इन पाइल्स ट्रीटमेंट व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि सब एडवांस एनोरेक्टल में अभी जो एडवांस कुछ चल रहा है दे वांट टू नो बिकॉज ठीक है ठीक. कैन स्टार्ट विद बेसिक आल्सो बिकॉज देयर आर हाँ, सम वही- न्यू कमर्स आल्सो. वही मैं कंफ्यूज था. मैं ये समझा कि पीएचडी के मेरे सामने स्कॉलर्स बैठे. सो नाइस ऑफ यू आर पीएचडी स्टूडेंट्स. तो ऐसा है कि पहले तो बेसिक हम बात कर ले. सुश्रुत महाराज ने कहीं पर भी कोई ऑप्शंस चिकित्सा में नहीं दिया है. ओनली अष्टमहागध में 2 व्याधि गिनी है, एक अर्श और भगांदर, यानी कि 25% और वो भी एक इंच के काने में. होल द वर्ल्ड हैज एन एवरी प्रॉब्लम इज स्टार्ट विद द होल. अगर भगवान ने होल नहीं बनाया होता तो हम आप यहाँ नहीं मिलते. अब चाहे वो नाक के हो, कान के हो, जीभ के हो, बाहर जाने वाले हो, अंदर आने वाले हो, कान समस्या कान होल से है. तो यहाँ पर उसने 4 टाइप की ट्रीटमेंट लिखी है. इससे पहले के प्रश्न में अपने को औषध चिकित्सा के बारे में लिखा है, फिर अग्निकर्म, फिर क्षार कर्म, फिर शस्त्र कर्म. और टिल टुडे कोई एक स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी नहीं बन पाई है कि किसी एक डंडे से हम हकीम हो जाए और हल्दी लेके गांधी बन जाए. है ना. हमारे पास बच्चे आते हैं, सर हमको देखने दीजिए, बस कुछ नहीं करना है. वो एकलव्य आके देख लेते हैं और फिर कुछ न कुछ कर जाते. फोन करते हैं, सर ने बोला जैसे नीचे सेल्फी निकाल, सर जरा बघा नाही मी करतो काय तरी प्रॉब्लेम आहे, जरा बघा ना सर. काय करू, उंगली घालू की पाय क्षारसूत्र करू की मी तिच्यामध्ये लेझर करू, ती मी काय करू. बट द थिंग इज दैट कि पहले जब तक आपको पहले ही बात हो चुकी लेजर, तो अपन ये चिकित्सा में मान लेते हैं कि पहले ऑक्सीजन एंड लाइगेशन पाइल्स में था. पहले एनुअल डायलिटेशन फीचर के लिए माना जाता, लोड्स रेक्मर्स वगैरह ऑपरेशन थे. उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है. फिर स्पिंटर के बारे में आया, इतने सारे हुए, कुछ बोटॉक्स लगाते हैं, कुछ लगाते हैं. लेकिन इनके बावजूद भी फिशर इतना कोई हेडेक नहीं रहा प्रैक्टिस में, क्योंकि वो 70-80% तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट एंड लाइफस्टाइल चेंज से ही ठीक हो जाते हैं. उसमें आयुर्वेद में अगर सबसे बड़ी है तो मैं 3 चीज़ को यूज़ करता हूँ कि उसको मैं हमेशा छोटा सा बुद्ध पूर्ण करता हूँ. मात्रा बस्ती नहीं कह सकता, उसका मॉडिफाइड रूप में. अगर पित्तज है तो मधुयष्टि और पंचतिक्त घृत की मतलब 5 to 10 cc रात को सोते समय लगा देता हूँ और संडास जाने के बाद में दे देता हूँ. तो उससे काफ़ी फायदा होता है. वातज व्याधि के लिए प्रभाकर जनार्दन देशपांडे के नाम से हम लोगों ने प्रभाकर तेल बनाया है, और कफज के लिए जात्यादि मतलब तेल का हम दे देते हैं. बट
जी रिगार्डिंग दी पाइल्स क्लोज हेमडेक्टोमी तक सब स्टैंडर्ड है, लेकिन इट स्टार्ट विद स्क्लेरोथेरापी। स्क्लेरोथेरापी पहले शुरू हुई थी 5% फिनल आलमंड ऑयल के साथ में। उसमें बहुत सारी समस्या बहुत सारी थी, इसमें इसके लिए वो बेंडअप हो गया। बट 1999 में अमिताभ बच्चन जी जिससे फायदा में हुआ, जो हमारे शाह साहब ने किया था, शरद शाह ने उसको स्कोप डालकर वेराइसिस को जो है ब्लीडिंग को स्क्लेरोजिंग एजेंट से बंद किया था। वहाँ से हमको प्रेरणा मिली। 99 में मैं सेंट मार्क हॉस्पिटल लंदन में गया था पीटर ल्यूनिस एंड रॉबिन फिलिप्स के साथ में। मैंने कहा यार तुम लोग ये लगाते उसी को पाइल्स में लगाए, बोले आज तक किसी ने लगाया नहीं, तो लगा ले, कुछ होगा तो तेरे को हैंडल करना पड़ेगा। मैंने कहा इसमें होगा क्या? बोले कुछ नहीं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होगी। मैंने कहा मैं तो 4 दिन में भाग जाना, पीटेगा पेशेंट तेरे को, मुझे क्या करना था, लगा सारा का। फिर वो कैसे करते थे वो स्कोप उसके देखा मैंने और पाइल्स को किया। तो अभी जो अपने पास 2 मार्केट में अवेलेबल मॉलिक्यूलर्स है, उसमें पिविडोकिनोल्स है और एक दूसरा सेट्रोल करके है, तीनों 3% है और तीनों अल्कलाइन है। जैसे परवाजी सर मेरे सर आए थे जिनसे मैं प्रतिशाणी अक्षर सीखा, लेकिन मेरी इतनी जितनी हिम्मत नहीं है क्योंकि मैं दुनिया का सबसे फट्टू सर्जन हूँ और प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए मैं नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मैं उसको आदरणीय प्रणाम करता हूँ कि शुद्ध आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं, प्रमोट करते हैं और बच्चों को तैयार करते हैं। तो उसके जैसे ही ये स्क्लेरोथेरापी करने से आप अंडर ऑब्जर्वेशन तीनों पेशेंट एक साथ में कर सकते हैं एनेस्थेसिया के अंदर में, या तो चरक अपने सुश्रुत के हिसाब से 1-2 ऐसा करके बारी बारी करके 15 दिन के अंदर में कर सकते हैं आप ओपीडी लेवल पे। उसके बाद में इंफ्रारेड कोगुलेशंस है, लेकिन इंफ्रारेड कोगुलेशन की समस्या ये है कि वो कभी कभी अगर आपने डीप म्यूकोजा जलन कर दी तो सीवियर ब्लीडिंग करता है। फिर उसके बाद में आता है क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी आजकल बैंड है, जैसे अपने सुश्रुत ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, एक तो दग्ध के अंदर में एक शीत दग्ध और एक उष्ण दग्ध। तो क्रायो इज नथिंग बट शीत दग्ध -20 to 40 सेग्रीगेट करके प्रोब को वहाँ टच करके हम करते हैं, लेकिन उसमें फ्लूलेंट म्यूकोजल डिस्चार्ज बहुत होता है और मेल पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे उसको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और पैड लेके घूमना पड़ता है और इलेक्ट्रोल डिसबैलेंस हो जाता है। ऐसे बहुत सारी समस्या फिर भी आज इंडिया में 3-4 जगह पे बड़े पैमाने पे क्रायो सर्जरी हो रही है, अदरवाइज इट इज स्टॉप। इसके बाद में आता है DGHL, डॉपलर गाइडेड हेमरोइडल आर्टरी लाइगेशंस। उसमें एक सोनोग्राफिक प्रोटोस्कोप होता है, उसमें एक स्पेशल किस्म की खांच होती है। वो प्रोटोस्कोप जो है आपको आर्टरी विनस सिस्टम्स पकड़ता है, वहाँ पर साउंड आते हैं, उसको आप लाइगेट कर दो तो हो जाता है। लेकिन उसमें भी एक मर्यादा रही कि कंपोनेंट इतने रिडक्शन नहीं होते हैं, इसके लिए फिर रार शुरू हुआ, इनको टाई करके म्यूकोप्लेक्सी कर देते हैं ताकि सब वो खत्म हो जाए। बट इट इज एन ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम एंड इट वॉज नॉट सक्सेस इन इंडिया, बट इट इज वेरी गुड फॉर द सेकेंडरी ब्लीडिंग। जब आपके पास सेकेंडरी ब्लीडिंग आए और अंदर देखे तो ऐसा ही लगता है लावा उड़ रहा है, तो पैकिंग करके उसको डालिए, ब्लीडर को पकड़कर टाई कर दिए, इट इज बीन वेरी इजी एंड सेफ। इसका एक बाय प्रोडक्ट जो है हम लोगों ने ढूंढ निकाला है, और पर्टिकुलरली लेजर करने से पहले अगर उसको टाई कर देते हैं तो सेकेंडरी ब्लीडिंग बहुत कम होती है और सक्सेस रेट इज वेरी हाई। फिर उसके बाद में जो है MIPH आया, स्टेपलर मशीन, वो भी टोटली आज ऑलमोस्ट गिवन हो गया। मैं और सर को लोगों के साथ, उसके फादर के साथ रहने को मिला, एंटोनियो लोगो फ्रॉम द इटाली, लेकिन ही इज स्टिल एबेडेंट फॉर दैट, बट उनके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस एंड मर्यादा है। बेसिकली इट वाज बीन इन्वेंटेड फॉर द म्यूकोजल प्रोलैप्स, क्योंकि वो कट कर लेता है तो थोड़ा सा म्यूकस खींच जाता है तो कुंथन कम करना पड़ता है, बट इट हैज इज ओन लिमिटेशंस एंड कॉस्ट फैक्टर इज वेरी हाई एंड रिक्वायर्ड ए वेरी गुड स्किल्ड हैंड्स। वो एक ही पेशेंट के लिए जो डिस्पोजेबल मशीन आती है वो 22,000 की है और इंडियन पीपल कैन नॉट अफोर्ड, इसके लिए वो भी आजकल में नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडे लेजर, और डायोड लेजर 0.10 ms के ऊपर से यदि आप लेजर यूज करते हैं along with sclerotherapy or a ligation, it is a painless, less bleeding and it has been very good instrument today. But before that, गुप्ता सर ने कसा ऐसा आपकी
सर्जिकल स्किल्ड को डेवलप कीजिए। पहले थोड़ा 4 पाँव पे चले, फिर कुर्सी लेकर चले, फिर बाप या माँ की उंगली पकड़ के चले और फिर दौड़े, फिर साइकिल चले और फिर ऊपर आए, तो मुझे अच्छा लगेगा। नाउ रिगार्डिंग फिस्टुला इज फिस्टुलोटॉमी स्टैंडर्ड है। फिर उसके बाद में डिवाइस स्फिंक्टर्स का आया, स्फिंक्टर सेविंग आया, कोर टेक्निक आई, प्लग आया, ऑल सब जो है धीरे 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 करके कहीं पर यूज होता है। प्लग वॉज बीन टोटली फेल्ड। इसके बाद में ग्लू करके आया, वो भी इतना अच्छा नहीं चला। आज के दिन की यदि इसमें सबसे अच्छा बेस्ट है तो पार्शियल फिशरेक्टोमी विद क्षार सूत्र, और नहीं तो टोटल पूरा रिपेयर करके पीडीएस से जो है उसको रिकंस्ट्रक्शन कर दो स्फिंक्टर को, बट उसमें भी रिकरेंस बहुत ज़्यादा है। एंड थर्ड इज लास्ट वन इज इन फिस्टुला इज ए लेजर। पर फिर सिर्फ लेजर से कुछ नहीं होता है, उसमें विंडो टेक्निक करो, उसमें फिर वो क्या करता है, वो लिफ्ट करो, फिर वो हमारे साहू सर करते हैं इफ्टा, वो करो। लेकिन ये सब के बावजूद भी भगंदर भगंदर है, और ऑल भगंदर आर डिफर एंड नॉट अ सिंगल मेथड्स। कल शायद कोई था हमारे साथ में, हम लोग मजूरी कर रहे थे। कौन था कल हमारे साथ वहाँ पर? वो बोला सर लाइगेट कर दो और इफ्टा करो। वो 3 अलग अलग वहाँ से ट्रैक निकली और बोले वहीं से करना है, और मैं भी गधा उसके जैसे पीछे पढ़ाई रहा एंड अल्टीमेटली वी सक्सेड। तो ये है कि यू नो ईच एंड एवरी टेक्निक्स, एंड बिफोर यू नो द फ्लाई इन गोइंग इन द फाइनल टेस्ट मैच, पहले गली में भी गिल्ली डंडा खेला करो। थैंक यू वेरी मच। गेल्या 20 वर्षामध्ये ना जी काही प्रगती झाली आहे त्याच्यामध्ये टेक्नॉलॉजीची प्रगती खूप झाली आहे, पण आपल्याला एक सांगतो की टेक्नॉलॉजी माणूस घडत नाही। त्यामुळे कारण टेक्नॉलॉजीला आपण आत्मसात करायला पाहिजे वापरायच्या आधी। आजही पाईल्समध्ये मिलियन मॉर्गनचं ऑक्सिजन लायगेशन गोल्ड स्टँडर्ड आहे आपल्याला सांगतो। काही लोक जे तुम्हाला असं भासावून दाखवतात की रेझर वापरला, हे वापरला, ते फक्त करे कॉस्ट कार्यक्रम आहे। स्टेपलरचा विषय सांगितला यांनी, मला चांगलं आठवतं एक पेशंट मुंबईला ऑपरेट करून गोव्याला आला, त्याला सर्जननी सांगितलं की तुझं ऑपरेशन करून संध्याकाळी तू फ्लाईटनी जा। गोव्याला पोचल्यानंतर तो एका आमच्या मित्राबरोबर होता, त्याचा मला फोन आला की डॉक्टर त्याला त्रास होतोय, काय करायचं? मी म्हटलं काय प्रॉब्लेम काय झाला? नाही म्हणाले त्याला आग होतोय तिकडे। तर माइंड वेल स्टेपलर केल्यानंतरच खूप चांगलं होतं असं काही नाही आहे, त्याचे कॉम्प्लिकेशन आम्ही बघितलेले आहे काय होतात, आणि परदेशामध्ये हळूहळू ते कमी व्हायला लागलं आहे। त्याचं कारण काय आहे? त्याच्यापासून होणारे उपद्रव भयंकर आहेत, आणि आपल्या देशामध्ये करे लिटिगेशन खूप कमी आहे, त्या देशांमध्ये करे अगदी $1 मिलियन मध्ये जातं ते। आणि म्हणून करे ते सुद्धा मी म्हणतो काय की ते वापरायला घ्या, पण आपण आधी शिकायला पाहिजे। केवळ करे ते स्टेपलर केल्यामुळे लाख रुपये बिल होईल ह्या गोष्टीकडे बघूच नका। फिस्टुलामध्ये सुद्धा आजही तुम्ही प्रिन्सिपली जर बघायला गेला 2च ट्रीटमेंट आहे, एक ओपनिंग द ट्रॅक अँड हॅव्हिंग ॲक्युटेड ड्रेनेज, अँड सेकंडली इज फिस्टुलेक्टॉमी। आता ते कुठल्या मेथडने तुम्ही करता, यू कॅन चूज अ ओन वे। हे बाकी सगळे जेवढे आलेले आहेत हे सांगितलं, हे सगळं फॅसिनेटिंग आहे फक्त। थँक्यू। सर बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट टाइम पढ़ते जाओ तो इट शुड बी अ रैपिड फायर। या सर, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि एनेस्थेशिया और आयुर्वेद इनमें कुछ मध्य हो सकता है क्या? आपल्याला मी सांगू इच्छितो की एनेस्थेशिया हा जो आहे आजच्या तारखेला पार्ट अँड पार्सल ऑफ सर्जरी आहे। एनेस्थेशिया शिवाय जर मी सर्जरी करायला गेलो तर ती बार्बरिक सर्जरी होणार। म्हणजे 100 वर्षापूर्वी जे करे इंग्लंडमध्ये किंवा यूकेमध्ये तुम्हाला कल्पना नसेल, बार्बर्स वर मोर सर्जन्स अँड लेस मेडिकल पीपल वर सर्जन्स। पण आपल्या देशामध्ये ती कहाणी नव्हती। आपल्या देशामध्ये आपण सुश्रुत काळापासून जर आपण बघत आलेलो आहोत तर आपल्याकडे शिक्षण होता, कोणी शिकायचं हे म्हटलं होतं, कोण टीचर व्हायचं हे म्हटलं होतं, स्कूल होता, शिक्षण होता, योग्यविधीसारखे कार्यक्रम होते, त्यामुळे आपल्याकडे वेल एस्टॅब्लिश शिक्षण होता। तर एनेस्थेशियाबद्दल मी आपल्याला वेळ सांगतो की सुश्रुत संहितामध्ये सुद्धा जे उदाहरण आलं आहे की मध्यम पायेत
हा कार्य मध्य जो उल्लेख आलेला आहे आपल्याला एकच सांगतो, त्याची व्याख्या अशी आहे, यद बुद्धिम लुंपती तद द्रव्यम मध्यम. याचा अर्थ आपण समजून घ्या. त्या मध्यला दारू समजू नका. कारण भेषजमध्ये मद्य हा जो शब्द आहे औषध आहे आणि त्याच्यामध्ये महत्वाचं काय आहे की ते अशुकारी आहे. त्याला करे शरीरावर ॲक्शन व्हायला वेळ लागत नाही. जसं करे तुम्ही पेय जे काय ज्यांनी पान केलं असेल त्यांना अनुभव आला असेल की 15 मिनिटामध्ये तो आधी शेर होतो. तर ती जी त्याची जी फास्टनेस आहे म्हणजे शीघ्रता आहे शरीरावर ॲक्शन आणण्याची ती योग्य आहे. आणि आपल्याला याचं उदाहरण देऊन सांगतो. मी आजच बोलत होतो की चायनामध्ये सुद्धा आपल्या देशातनं करे एनेस्थेशिया गेला आणि तिथे करे लिखित स्वरूपात आहे. तिथे करे एक पेय तयार करायचे, त्याच्यामध्ये ओपियम हा एक घटक होता, भांग एक घटक होता आणि 10-12 अशी औषधं मिळून त्यांनी तयार केला होता. सर्जरी करायच्या आधी ते त्याला पेशंटला पाजत होते आणि नंतर त्याची सर्जरी होत होती. माइंड वेल आपल्याला सांगतो की एनेस्थेशिया वेस्टर्न कंट्रीमधला आहे, त्याचा इतिहास फक्त 100-150 वर्षाचा आहे. आणि आपल्या देशामध्ये करे 1000 वर्षापूर्वी करे सर्जरी केली जात होती आणि हा मध्य जो प्रकार मी सांगतो तो उपलब्ध होता. फक्त करे आपल्याकडे स्पेशलाइज लोक नव्हते आणि त्यामुळे करे एनेस्थेशिया शिवाय सर्जरी कधीच एक्झिस्ट झाली नाही आहे. पहिल्यापासूनच करे संमोहन म्हणा संज्ञानाश म्हणा हे उपलब्ध होतं आपल्याला सांगतो. पण आजच्या तारखेला मी म्हटलं ना की ब्रांचेस जसे जसे विकसित होत गेले, एनेस्थेशिया एक ब्रांच झाली आणि आज त्याला करे वेगळा वे आहे. त्यामुळे एनेस्थेशिया आपण वापरायचं की नाही माझं म्हणणं असं आहे, एनेस्थेशियाचं ज्ञान आपल्याला निश्चित असायला पाहिजे. आणि मी ह्या मताचा आहे की जे काय एनोरेक्टल सर्जरी ज्याला शिकायची आहे त्याने एनेस्थेशिया शिकायला पाहिजे. कारण लोकल ब्लॉक्स जे आहे ते इक्वली आहे, फक्त तुमची कार्य योग्यता त्याच्यात पाहिजे. इवन जे स्पायनल आहे सॅडल ब्लॉक आहे आपल्याला सांगतो हे उत्तम आहे. संघवी सर सांगत होते की जापानमध्ये कार्य जे सर्जरी करतात ते स्वतः एनेस्थेशिया देऊन करतात आणि प्रमाणित आहे. आपल्या देशामध्ये अजूनही त्याला अडथळे आहेत. कारण काय झालं की पॉलिसी मेकिंगमध्ये आपले लोक खूप कमजोर पडतात. ही वस्तुस्थिती आहे आणि कायम ती करे भीतीचं वातावरण आपल्या सर्जन लोकांना आहे. त्याचं कारण काय आहे की नेहमी प्रश्न उपस्थित राहतो, आधुनिक आम्ही वापरायचं का नाही, आपल्याला अधिकार आहे की नाही आहे. आणि कुठेतरी आपली काउन्सिल आपला समाज कमी पडतोय. आज मॉडर्न लोकांचा त्याच्यावर काही पगडा असल्यामुळे ते काय वेळेला आपल्याला करे बाजूला करायचा प्रयत्न करतात. मला वाटतं कालांतराने काही गोष्टी सुधारणार आणि ह्या गोष्टी आपल्याला काही मिळतील असं मी अपेक्षा करतो. आजही नाही असं नाही, आपली योग्यता काय आहे त्याच्यावर महत्त्व आहे. मी गेले 25 वर्ष आपलं 25 काय मला आज 32-35 वर्ष होणार आहे सर्जरीचं काम करतोय, एनेस्थेशियाचंही काम करतोय. अनेक वेळा मला प्रश्न विचारला गेला की तुम्हाला एनेस्थेटिकचं नॉलेज आहे का, परवानगी आहे का. मी म्हटलं मी जोपर्यंत काम करतोय माझ्या मनाला पळतंय आणि ते काम करणं मी सक्षम आहे तेवढं मी करत राहणार आहे. कोर्ट कचेरी जे काय होईल ते नंतर बघू. कारण मी नेहमी सांगतो की नख काढताना सुद्धा पेशंट बेशुद्ध होऊ शकतोय, बोट काढताना सुद्धा पेशंट बेशुद्ध होऊ शकतो. त्यामुळे ती तयारी मला ठेवायला लागणार आहे. त्यामुळे तुम्ही जसं काम करत जाणार आहे. आणि काही लोकांनी जे प्रचार केला की आयुर्वेदामध्ये करे अर्शभगंधती चिकित्सा आपल्याला कुठलाही एनेस्थेशिया लागत नाही, कुठलाही ऑपरेशन लागत नाही, हे पूर्ण चुकीचं आहे. आणि त्याच्यामुळे मग समाजामध्ये एक भ्रम निर्माण झाला की काही आयुर्वेदामध्ये सर्जरी नाही आहे. कृपया करू नका. जिथे इथे उपलब्ध होईल तिथे एनेस्थेटिक्सची मदत घ्या, जिथे उपलब्ध होईल सर्जनची सहायता घ्या. त्याला तुमच्या प्रॅक्टिसमध्ये करे सफलता मिळायला मदत होणार आहे. Sir, एक क्वेश्चन आहे, कॅन वी डू मेजर ऑपरेटिव्ह सर्जरीज एक्सेप्ट प्रोक्टोलॉजी ॲज अ आयुर्वेदिक MS इफ गाईडेड? येस, आपल्याला सांगतो की जो कार्य लॉ आज आपल्याला परमिट करतो त्याच्यामध्ये क्लिअर कट मिळलं आहे टू द एक्सटेंट ऑफ ट्रेनिंग डिपार्टेड टू यू आहे. तुमचं शिक्षण जिथे झालेलं आहे तिथे आपल्याला काय शिकवलं गेलं आहे आणि आपण काय केलेलं आहात. आणि त्याचं उत्तम डॉक्युमेंट आहे तुमचं सिलेबस, तुमचं कार्य जर्नल आणि तुमची डिग्री.
आणि ते सर तुम्ही जे जर्नल तयार करता त्याच्यामध्ये ॲक्च्युली काय तुम्ही जर्नल लिहिता दॅट इज वॉट युअर वर्क युअर डन. इवन आज तुम्हाला माहीत असेल इंटर्नशिपचा जो वर्कबुक आहे ते सुद्धा माझी विनंती लोकांनी सांभाळून ठेवा. कारण तुम्ही त्याच्यात जे काय लिहिता त्याच्यावर तुमचं करे HOD तुमचं करे प्रिन्सिपल सही करतो की हे एवढा करे तुम्ही काम केलेलं आहे शिकलेलं आहात. आणि माइंड वेल कोर्टामध्ये ही सगळी जे लिखित स्वरूपात असतं ते कामाला येते. आता वेळ कमी आहे त्यामुळे नाही तर मी तुम्हाला कोर्टाचे केससुद्धा सांगता आला असं मला. त्यामुळे आपण सर्जरी करत असताना जे काही शिकलो आहे तुम्ही निश्चितच करू शकता. फक्त एवढंच आहे की जे काही शिकलेलं आहे त्याची मर्यादा आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे. सर नेक्स्ट क्वेश्चन संघवी सर के लिए है. सर अगर पेशेंट को एक्सटर्नल या इंटरनल पाइल्स दिख रहा है या हिमोरॉइड्स है तो उनको बस्ती देना चाहिए कि नहीं है. बस्ती या विरेचन थेरेपी के लिए पेशेंट आ रहा है तो इसका क्या करना चाहिए. पण उसको जो है बस्ती और विरेचन क्यों देना है? क्वेश्चन आया है. अरे वही तो पूछ रहा हूँ, जिसने विद्वान गण ने प्रश्न पूछा है. इज ए पार्ट ऑफ ए ट्रीटमेंट. ओ फाइन, अनाउंस द नेम. ठीक है. नोट नोट नेट. अभी सर ने बोल दिया. देखो ऐसा है कि यदि आपके प्रोलैप्स 3rd डिग्री पाइल्स है और यदि आप उसको बस्ती और विरेचन देंगे तो क्या होगा? उपद्रव बढ़ेगा कि कम होगा? यहाँ आप समन चिकित्सा कर रहे हैं कि शोधन चिकित्सा कर रहे हैं? यदि आप समन चिकित्सा करके कम आउट टू द बिलो द अर्ली 2nd डिग्री पाइल्स तो होता है. यदि आप बस्ती देते हैं तो उस समय वो छिलेगा तो वैद्य निमित्त परिकर्तिका ब्लीडिंग और वो आप कॉम्प्लिकेशन करेंगे. सेकंड थिंग इज दैट कि यदि आप विरेचन देंगे तो वेगा करके साथ में अगर वो आएगा तो म्यूकोजा फट जाएगी. जैसे बारिश में आती है बाढ़, सब बहा के ले जाएंगी. पाइल्स तो बाहर नहीं आएंगे लेकिन आप या तो पेशेंट दोनों एक ICU में जरूर होंगे. रिसेंटली पर्टिकुलरली रक्तज है तो. रिसेंटली जो केस हम लोगों ने अभी हैंडल किया 1 महीना वो पेशेंट एडमिट थी हाँ. जिसको विरेचन के बाद फीचर में एक्सेस हुआ था. दैट इज वन आंसर. एंड ये जो क्वेश्चन आया है इट इज क्या नहीं करना चाहिए. सी बेसिकली ये है कि आपको ये समझना चाहिए, जो मैं बहुत अर्ली चाइल्डहुड में मैं समझ गया कि योजकस्तु दुर्लभम. कौन सी चीज कहाँ यूज करना वही सबसे बड़ी समस्या है. माई सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स एंड माई इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स, ये दो मुझे पीड़ित करती है. और तीसरा, कोई भी टेक्निक कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं करती. क्यों? फर्स्ट थिंग इज सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट. अपनी सिलेक्शन कमेटी करती है, हालांकि उसमें चलता है किसको रखे किसको न रखे, लेकिन यहाँ तो आप खुद ही सिलेक्टर है, इसलिए दूसरे का आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है. अगर पेशेंट दबाव करता है तो 100 रुपये का कागज रखो. मैंने ये पद्धति मनाई की है. तेरे कहने से मैं कहता हूँ जो कुछ भी होगा तू जिम्मेदार है. तुरंत बोलेगा सर आप जो करना है करो, मुझे ठीक होना है. तो आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए. नंबर 1 तो सिलेक्शन आप करें कि मैं किस पद्धति से इसको करूं. उस पद्धति के लिए आप टेक्निकली थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एक्सपर्ट है. आपके इंस्ट्रूमेंट उसी हिसाब से नए हैं, जंग नहीं लगी है, कई सालों से यूज नहीं किया है. यू नो, जैसे दिवाली में हमारे वहां पर गांव में बर्तन उठाते हैं, उसको फिर वो इमली और खट्टा लगा के फिर 4-5 दिन चकचकाट, फिर बाद में फिर काले के काले. ऐसे इंस्ट्रूमेंट न हो, यानी कि एक्सपायरी न हो. एंड 4th थिंग इज दैट कि आपका पेशेंट को उसके लिए फिट है, उसको आपने काउंसलिंग की है और उसने परमिशन दी है, तो कोई भी टेक्निक कभी भी जो है मतलब आपको कभी भी कोई उपद्रव नहीं देगी. दिस इज एंडलेस. इथे वर्ड ऑफ कॉशन आपल्याला सांगतो की ज्याने हे प्रश्न विचारला त्या अनुषंगाने मी सगळ्या समुदायाला सांगू इच्छितो की जे पंचकर्म चिकित्सा करायला घेतात त्याने करे बस्ती किंवा विरेचन कर्म करायच्या अगोदर स्वतःला जरी जमत नसला तरी आपला सहयोगी जो कोण कार्य शल्यचा असेल त्याच्याकडनं गुद परीक्षण करून घ्यावे. Good message, sir. Sir, it is endless session. N number of questions are there, but it's good that we have उनका number लिया है. We'll answer them. Yeah, you can answer that. That will be last because we have to end up. It's a good question for me. How to judge 3rd degree piles and mucosal prolapse on PR examination
एट ओपीडी लेवल। इसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए नंबर 1, बट टेबल पे ठीक हो जाता है। यही क्वेश्चन पेशेंट को पूछो कि संडास जाते समय कुछ रुकता है क्या, बॉटल क्लॉक जैसा, और जोर करना पड़ता है या ऐसे ऐसे हिलना पड़ता है या बोट डाल के ऐसे ऐसे उंगली डालनी पड़ती है, जिसको हम गणेश क्रिया कहते हैं, और संडास पट्टी जैसा आता है। आंख बंद करके म्यूकोजल प्रोलेप्स लिख लो, आंख बंद करके। और अगर 3rd डिग्री पाइल्स है तो संडास में रुकावट होगी, लेकिन कंसिस्टेंसी उसकी चेंज नहीं होगी पट्टी जैसी। दिस इज नंबर 1। एंड नाउ द क्वेश्चन इज ऑन पीआर। तो जब आप पीआर करें तो एनोरेक्टल रिंग क्रॉस करके जब आप रेक्टम में जाए, उसको दबाव कीजिए और खींचेंगे तो म्यूकोजा आपके साथ उंगली के साथ आएगी, पाइल्स कभी नहीं आएंगे। वो मेरू पर्वत के जैसे आपकी उंगली के ऊपर दबाव करेंगे, और वो एक्ट्रो इंटरनल हो या इंटरनल हो, बट एनोरेक्टल रिंग के नीचे ही होंगे और प्रोलेप्स इसके ऊपर होगी। आई थिंक सो दिस इज द क्लियर वन मैसेज फ्रॉम माई साइड। और दूसरा प्रश्न ये था कि SRUS क्या लिखा था गुरु, देखो तो जरा SRUS में क्या ट्रीटमेंट, क्या क्या प्रश्न था? नहीं, ट्रीटमेंट क्या मांगा है? अच्छा, डायग्नोसिस में ऐसा कुछ नहीं पूछना है, उंगली डालते हैं तो ही संडास आता है, बोले हाँ, तो वहाँ कैंसर 90.90 हो सकता है SRUS ही होगा। उसका डायग्नोसिस है आपकी PR, सेकंड प्रोटोस्कोपी, और अबव दैट तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये 4.5 अंगुल है, इससे ज़्यादा तो है नहीं कि ऊपर रेक्टम में और सिग्मोइड में आपको अल्सर मिले। दैट्स नंबर 1। सेकंड थिंग इज दैट कि उसकी मैनेजमेंट के लिए पेशेंट का माइंड ठीक करो, ये सबसे डिफिकल्ट काम है। सभी एनोरेक्टल को काउंसलिंग योजना करनी चाहिए और साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। इफ दे आर गुड, कुछ ऑपरेशन आए ना आए, लेकिन आपका धंधा अच्छा चलेगा, बिकॉज यू हैव टू कन्विंस हिम कि उंगली नहीं डालना। सर वो नहीं डालूंगा तो नहीं आएगा, तो मैं बोलता हूँ 1 दिन नहीं आएगा, 2 दिन, या नीचे नहीं तो ऊपर से निकलेगा, डालना बंद कर। और मैं तेरे को ऐसी गोली देता हूँ, तू खाते ही सुबह में बैठ जाएगा, साल को 3-4 दिन इच्छा भेजी दे दो तो बिना उंगली का आ जाएगा। तो पेशेंट का SRUS के अंदर में अगर आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से नहीं हो सकता है, अल्सर सॉलिड है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट आई डू IRC, और यू कैन डू द कॉटराइजेशन विद द रेडियो फ्रीक्वेंसी और वो दिस, और अदरवाइज विद द लेजर। और बहुत बड़ा है तो स्पेकुलम डाल के इसको जो है आप पूरा एक्सरसाइज करके उसको स्विचर ले लीजिए। द ट्रीटमेंट 1 इज फर्स्ट माइंड, सेकेंड स्टूल रेगुलेशंस, create a confidence patient, without ungli वो निकलता ही है, and 4th one is if a need the surgery, first is burn, second thing is that exercise, and close with this. सेशन इज एंडलेस। एक्चुअली हम लोगों ने क्वेश्चन जो तैयार किए थे उसमें तय किया था कि ऑल सब्जेक्ट कवर हो जाए, बट 1 hour and 2 hour इज वेरी लेस फॉर ऑल दिस थिंग्स। एटलीस्ट इट विल टेक हाउ मेनी आवर्स, आई कांट से एंडलेस आवर्स। बट सर जैसे आज यहाँ पे बैठे हैं, कल सर पूरा दिन OT में थे वेयर प्रैक्टिकल वाज गोइंग ऑन, तो थेरी एंड प्रैक्टिकल, आज थेरी को बहुत कम टाइम मिला है, तो थेरी एंड प्रैक्टिकल को इवनली टाइम मिलना चाहिए, सेशंस बड़े होने चाहिए। सो वी आर ट्राइड टू कवर ऑल द myths, at least myths we can say, and hope we have covered the points, and organizers will be happy for that, and I am happy that I am with my gurus, yeah, and yeah, hopefully अगर आपने बुलाया तो we'll be very happy to come back again and with a more bigger team than this. मेरी लातूर वाला से प्रार्थना, इसको 3 महीने में बोला, उसको माँ बाप को, बहन को, भाई को मिलके जाएगी। Thank you very much. थैंक यू वेरी मच। बिफोर यू स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट एवरीथिंग, हम लोगों को यहाँ बुलाया, आप लोगों ने मौका दिया, जाने अनजाने में मेरे स्वभावगत किसी को मैंने हर्ट किया है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। दूसरी बात यह है, ये हंसने वाली बात नहीं है, थोड़ा पकड़ के रखो, बाहर जाके हंसना ही है, और पेशेंट कोई आ जाए तब मैं देखता हूँ कैसे हंसते हो। दूसरी बात यह है कि 29-30 सितंबर नागपुर नीमा लोकल ब्रांच में 29 तारीख को लाइव डेमोस्ट्रेशन का प्रोग्राम है।
आप उसको जरूर अटेंड कीजिए। एपीए की खासियत साइलेंट फीचर्स जो आपको नहीं मिले। सर एक मैं आधी मिनट लूँगा आपकी परमिशन। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर। यू कैन कैरी ऑन सर। तो उसमें जो है हम अपग्रेडेशंस के प्रोग्राम, लीडर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ये वगैरह कर रहे हैं, डिपेंड अपॉन दैट वन, एंड वी आर पब्लिशिंग ई मैगजीन सून। 2 अंक तैयार हो गए हैं, लेकिन आई विल सपोर्ट टू डू दैट कि एवरी 3 मंथ्स के लिए मुझे 4, 1 साल के जब तक तैयार नहीं होंगे तब तक मैं उसको अपलोड नहीं करूंगा। दूसरे बहुत सारे बेनिफिट ये है कि जब कभी भी ये एपीए की कॉन्फ्रेंस होगी, यू विल गेट इन डिस्काउंट्स, नंबर 1, and for that, and whatever we share our experience, we will be pass out to you by the all electronics media. Whatever today's you word says is that you will get it on table, and you will get a permission to join with us as an observer. Second thing is that anytime you have a problem, you can call us and solve your problem. Because if you are not, मैं ये समझता हूँ कि उत्तरम चरित्र के अंदर में ये तुलसीदास जी लिख कर गए कि कलयुग में संघ चलेगा। संघ यानी आरएसएस नहीं, अभी तो वही चल रहा है, लेकिन संघ यानी आरएसएस नहीं, संघ यानी बल। जैसे बीजेपी की सरकार में 3 सीट वाला बोलता था, आवाज मत कर गिरा दूंगा। तो आपको सरकार को गिराना है, आपको अपनी अपनी अच्छी चीजें दुनिया को देना है, तो संघ होना बहुत जरूरी है। आदमी अकेला चलता है लेकिन उसके पीछे कारवां न चले। गांधी जी ने भारत आंदोलन छोड़ो करके बोला, गंगाधर तिलक मैंने स्वराज हर खाए मेरा बोला, और घर घर जाके गणपति किया, तब जाके ये हुआ है। इसीलिए हम जिनका खाते हैं, जिनकी रोटी से हम बड़े बनते हैं, उनका पहले आत्मसम्मान कीजिए, आपका खुद का बाद में कीजिए। और तीसरा, साथ में मिलकर हेल्दी कंपटीशन करें। ये नहीं कि अरे उसको आता नहीं, वो तो मेरा चेला है, मैंने उनको सिखाया है, आ जाओ मैं कर देता हूँ। आई थिंक सो नॉट। कोई किसी के बारे में नहीं बोले। मेरे पास रोज 15-20 पेशेंट में से 12 पेशेंट रिकरेंस आते हैं ऑल ओवर इंडिया से। गुप्ता जी के पास भी आते हैं, सोलंकी सर के पास, शुभंगी के पास, बट वी नेवर से। हमारा ये जवाब होता, मैंने तेरे को पहले देखा नहीं, इसलिए डिफिकल्ट। आज ये है, आज ये प्रॉब्लम है, और ये मेरा मैनेजमेंट है, और ये मेरी कॉस्ट है। तो उनका आप सम्मान करें। आपने हम लोगों को झेला और हमको सुखरूप जाने दिया लातूर से, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।